السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ریونت ریڈی نے تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ پچھلی BRS حکومت میں پولیس کی جانب سے زیادتی کے واقعات پیش آئے تھے، لیکن کانگریس حکومت قائم ہونے کے بعد صحافیوں پر پولیس کا ظلم زیادہ ہو گیا ہے۔ پولیس پہلے سے زیادہ صحافیوں اور ایڈوکیٹس پر حملے کر رہی ہے۔ کئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں پولیس حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اور صحافیوں پر حملے کر رہی ہے۔ جمہوریت میں ایڈوکیٹ اور صحافیوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ صحافت جمہوریت کا چوتھا پلر ہوتا ہے جو دن رات دھوپ چھاؤں بارش کی پرواہ کے بغیر عوام کے مسائل اٹھاتے ہیں۔ پولیس بھی جمہوریت کے ایک پلر ہے، اس کی بھی حدیں ہیں، لیکن پولیس حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہی ہے، اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال کر رہی ہے۔ اس کے چلتے تلنگانہ کے صحافیوں نے دہلی میں واقع راہل گاندھی کے گھر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ میں صحافیوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور دیکھا جائے تو صحافیوں کے لیے بھی پروٹیکشن ایکٹ قائم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی خدمت سکون سے کر سکیں۔ رک جاؤ سیو ڈیموکریسی ان تلنگانہ، سیو جرنلسٹ ان తలంగాణ، సేవ్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ। నశించాలి జర్నలిస్టులపై ప్రభుత్వ దాడులు, నశించాలి 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 జర్నలిస్టులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దాడులు, నశించాలి 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 జర్నలిస్టులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుచరుల దాడులు, నశించాలి నశించాలి దౌర్జన్యం, నశించాలి నశించాలి జర్నలిస్టులపై కాంగ్రెస్ అరాచకాలు, నశించాలి నశించాలి సేవ్ జర్నలిజం, సేవ్ జర్నలిజం, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ డెమోక్రసీ, స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ। స్టాప్ అటాక్స్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد کی جانب سے ہائی سکول حبیب نگر کھوجت کالونی میں فقد المثال مفت میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس مفت میڈیکل کیمپ کی سرپرستی حضرت سید عبدالقادر قادری حیدرآباد نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے کی۔ تمام ڈاکٹرز نے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی خدمات کی ستائش کی۔ اس دوران ماہر ڈاکٹرز دستیاب تھے۔ حسینی صاحب اور جناب احمد جبور صاحب اور ہمارے صوفی شاہ داؤد علی شفتاری صاحب اور اس اسکول کے تمام اساتذہ، اسٹاف اور تمام حاضرین کا میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگ اپنے مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کونسل کے لیے صرف کیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام ملٹی اسپیشلٹی ڈاکٹرز کا جو اپنی مصروفیات میں سے آج حالانکہ اتوار ہے، سنڈے ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات رہتی، سنڈے کے لیے مختص کی ہوئی رہتی، لیکن آپ لوگ اپنی مصروفیات میں سے بھی کچھ وقت نکال کر اس کونسل کے لیے عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے کے لیے آپ لوگ جو وقت دیا، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ہندوستان میں کوئی محتاج تعارف نہیں۔ ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کئی درگاہوں کے سجادگان اس کونسل سے منسلک ہیں اور اپنی اس کونسل کے ذریعے سے اور اس کونسل کے بینر کے ذریعے سے عوامی خدمات میں جڑے ہوئے ہیں، عوامی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالی نظام آباد کی آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی برانچ کو یہ موقع عطا کیا گیا آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ ہم بھی ایک مفت میڈیکل فقید مثال مفت میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ تمام کے مدد سے، رہنمائی سے آج یہ کیمپ منعقد ہوا۔ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مریض حضرات آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملانہ و عاجلانہ عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ حیات زندگی کی آخری سانس تک صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔
ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल निजामाबाद की यूनिट ना कि ये पहला कैंप कर रही, इससे पहले भी आयुर्वेदिक कैंप इसी शहर निजामाबाद में मुनक्किद की गई है और इसी एतबार से बैन मजहबी दावत इफ्तार भी किया जाता है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से, जिसमें कई मज़ाहिब के लोग आते हैं। हमारा काउंसिल का मकसद यही है, मोहब्बतों को आम करो, नफरतों को खत्म करो। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के संविधान को पामाल किया जा रहा है, हिंदुस्तान के संविधान को, फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। अलग अलग नारों से, अलग अलग तकारीरों से, अलग अलग बैनर तले हमको संविधान की हिफाजत करना है, हमको हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए मुत्तहिद रहना है, कौम और मिल्लत की खिदमत करना। उम्मत मुसलिमा अपने बच्चों को असरी तालीम के साथ हाफिज कुरान बनाने का अज़्म करें, कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। अल्लाह के कलाम के एक कुन से दुनिया का वजूद और एक कुन से खात्मा होगा। इन ख्यालात का इजहार मेहमान ख़ुसूसी मौलाना मुफ्ती उमर आबदीन कासमी मदनी, नायब मोहतरम अल महद अल आली, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल तेलंगाना ने सैयद याकूब अली मेमोरियल हिफ्जुल कुरान अकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निजामाबाद के ज़रिए एहतमाम 21 हिफाज इकराम तलबा की दस्तार बंदी व तकसीम मसनादात के इजलास से खिताब करते हुए किया। जलसे की निगरानी सैयद अयूब अली, चेयरमैन सैयद याकूब अली हिफ्जुल कुरान अकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निजामाबाद ने की। मुफ्ती उमर आबदीन कासमी ने उम्मत से कहा है कि कम से नौनिहाल हिफाज इकराम ने कुरान पाक के सफ़ात के नंबरात, आयात, पारा, जुबानी याद रखने की जहानत को गैर मामूली करार दिया है, जिसका मुकाबला किसी भी पेशा वाराना तरबियत के हामिल तमाम शोबों के माहिरीन में से एक फर्द भी पेश करने से खासिर है। अल्लाह की किताब का मौजज़ा है कि वो हाफिज इकराम के सीनों व दिमाग में महफूज है और हाफिज कुरान का दर्जा आला व मुमताज का हामिल है। मुफ्ती उमर आबदीन का कहना है कि इल्म का सीखना हर मुस्लिम पर फर्ज है। इस्लाम किसी भी उलूम को हासिल करने पर पाबंदी नहीं लगाई, ताहम दीन की बुनियादी तालीम हासिल नहीं करने वाला जाहिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया दीनी तालीम के मुकातिब फिक्र का वसी पैमाने पर इदारों का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता दहाइयों के मुकाबले में दौर हाजिर में बेशुमार मदारस दीनी व असरी तालीम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे जो काबिल कदर है। इस पर पुरनूर मुबारक महफिल का इख्तिताम अमल में आया। दीन हासिल करने की तलब और उसका शौक, ये वो सरमाए गिराम आया है जिसने आपकी सरजमीन की कीमत और उसकी वैल्यू में इजाफा कर दिया। निजामाबाद शहर के बरकतपुरा में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। अहले खैर हजरात से घर वालों ने मदद की अपील की है। इमदाद के लिए मोहम्मद हुसैन के फोन पे जीपे नंबर पर आप मदद दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 7794852056। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने एक रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक रॉडी शीटर जिसका नाम उमेश बताया गया है उसे पेट्रोलिंग और तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जो इलाके में कमर में चाकू छुपाकर घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि वो नशे का आदी है और मासूम लोगों को चाकू की नोक पर डरा धमका कर उनसे पैसे खींचा करता था, जिस पर कुलसुमपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कल शाम में हमारे एरिया में कुलसुमपुरा लिमिट्स में रहने वाले राउडी शीटर उमेश, उसको हम अरेस्ट करके जेल भी जाए थे। परसों मैंने शाम का टाइम पे कमेला रोड पे 100 फीट रोड कमेला रोड पे एक चाकू नियरली 18 इंचेस चाकू को कमर में रख के फिर रहे थे। हमारे जवान को हमारा पुलिस ऑफिसर देखे उन्हें उधर से भागने की कोशिश करें, उनको हम गिरफ्तार करके लेके आए। इंक्वायरी में उन्होंने करे सो रख लिए सो बोले और उनको बैड वैसेस जो भी है पीना और गांजा पीना हो उसको से पैसे दिए, बल्कि किसको भी इनोसेंट पीपल को अटैक करके उन लोग उनके से अमाउंट दे रहे, नहीं तो कुछ वैल्यूबल्स लेंगे बोल के वो प्लान पे उधर आए थे। उनके ऊपर इससे पहले भी बहुत नियरली 12 केसेस तक है
इससे पहले उन्होंने शाहनगंज कुलसुपुरा पुलिस स्टेशन की अटेम्प्ट टू मर्डर गांजा केसेस में थेफ्ट केसेस में भी उन्होंने रॉबरी डकैती केसेस में अरेस्ट हुए सर। और सबको राउडी शटर को वही मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा ऑफेंसेस बॉडी ले रहे दो प्रॉपर्टी ऑफेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। और तुम लोग भी दूसरा एरिया में जाके कुछ नहीं करना, दूसरा राउडी इसको भी इधर नहीं बुलाना। और अंधेरे एरिया में उधर आइसोलेटेड एरिया में फिर के नाइट के टाइम पे पीना और गांजा पीना और वो करना फिर करना, हमारा हमेशा हमारा 24 आवर्स निगाह रहते। कोई भी मिले ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ करे तो उन लोगों के ऊपर एज पर लॉ एक्शन लेके उन लोगों को जेल को भी जाना पड़ता। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा जिले में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ के अजीम मुजस्समे की नकाब कुशाई के प्रोग्राम में शिरकत की गई है। जिस मुल्क में दुर्गादास राठौड़ जैसे अजीम हीरो पैदा हों, कोई बैरूनी हमलावर इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा है कि उन्हें आजिज़ाना खराज अक़ीदत पेश करता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर, जिन्होंने कामारेड्डी टाउन के पुराने बस स्टैंड में नए कायम करदा श्री यशोदा शुगर एंड डेंटल क्लिनिक का बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ दीगर भी मौजूद थे। कानून साज कौंसिल के साबिक रुकन चेरुपल्ली सीतारामुलू ने इंतबाह किया है कि अगर मरकजी व रियासती हुकूमतों ने इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों को अमली जामिया नहीं पहनाया तो वो अवाम गरीबों और ज़री मजदूरों को मुतहरिक करेंगे और अवामी तहरीक शुरू करेंगे। तेलंगाना एग्रीकल्चर लेबर यूनियन की रियासती सियासी तरबियती क्लासेस सुंदरा विज्ञान केंद्र हैदराबाद में मुनक्किद की गई और रियासती सदर नागैया ने परचम की नकाब कुशाई की और चेरुपल्ली सीतारामुलू इन क्लासों के मेहमान खसूसी थे और मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि वो मजीद मुसल्लत करने की कोशिश कर रही, तीसरी बार इख्तिदार में आने के बाद अवाम पर बोझ डाल रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुज़िश्ता 10 साल के दौरे हुकूमत में अवाम पर बहुत से बोझ डाले गए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर खुसूसी इजलास तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरपर्सन की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें शेख लियाकत हुसैन मजाज ऑफिसर के साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबरान मौजूद थे। इस दौरान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। बोर्ड ने मंदरजा झैल करारदाद मंजूर की है। तेलंगाना रियासत में बड़ी तादाद में वक्फ जायदादें हैं और चूंकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड सबसे बड़े स्टेक होल्डर का मुहाफिज है, बोर्ड ने मुजवजा वक्फ तरमीम बिल 2024 शक ब शक में एहतियात और तंदही से गुजारा है और कानूनी माहिरीन और मुंतजमीन के साथ मसाइल पर बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मुक़द्दस शहर में योगेश्वर भगवान कृष्ण और राधा रानी की इलाही और खूबसूरत शक्लों के दर्शन और पूजा किए और श्री कृष्ण और राधा की बरकतें पूरी मखलूक पर कायम रहे, पूरी दुनिया खुशी से झूमे, इसके लिए दुआ की। तेलंगाना के वज़ीर आईटी श्रीधर बाबू और टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने आईआईटी हैदराबाद कंडी का दौरा किया। वज़ीर जग्गा रेड्डी ने आईआईटी के डायरेक्टर बीएस मूर्ति के साथ कैंपस में आईआईटी के तलबा की तरफ से नई बनाई गई ड्राइवरलेस गाड़ियों की कारकर्दगी का मुआयना करने के बाद बकायदा ड्राइवर वाली गाड़ियों का दौरा किया। प्रोग्राम में आईआईटी के प्रोफेसर्स और तलबा ने हिस्सा लिया। So vehicles we don't make them, we bring the regular vehicles, and first of all they should be an e-vehicle as far as possible. Okay, we get the e-vehicle, okay, and then we monitor it, and we have a test track. This is India's first test track, a 2 kilometer test autonomous vehicles. In the whole country, this is the only test track. No other IIT. This is the first time. He is from Suzuki, Murachi. So they are very strongly collaborating with us with various activities. She will explain you the activities. And together, you know, IIT Hyderabad has what is called Suzuki Innovation Center at IIT Hyderabad. They say that outside Japan, particularly because they are from transportation, they are being focused more on the transportation.
Come back. Every 1 hour it makes rounds. Okay. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।